Hello friends, in this video I explain the information of the CS, Company Secretary. Company Secretary is also valuable course. It is a professional course conducted by institution of the Company Secretary of India. It is registered in the Special Parliament Act in 1949. This course is useful for the students who are doing the BCom or completing the BCom. It is a valuable course, reputed course. So how you complete this course? How you get the admission in the CS? What is the prospectus? After completing CA, what is prospectus? What are the scope of the CA? How you get, what are the amount of packages offered by the company? This all information I provide you in this video. So first of all, what is CS? CS is a professional course. CA is a professional course conducted by institution of the Company Secretary of India, registered in the Parliament Act. You remember that it is registered in the Parliament Act. So it is a valuable course. Second valuable course is a CA. CS. First is a CA. Get it? After completing CS, you can work as a whole-time CS appointed by every company whose paid up capital is 5 crore or more. Every company whose paid up capital is 5 crore and more must appoint a CS. He is look after all the formalities of the company, all the legal formalities of the company. What is the duty of the CS? It is look after that company completed all the legal formalities. All the legal formalities guided by the government, guided by the SEBI, is the required under NSE, BSE, Bombay Stock Exchange. Get it? So it is the duty of the auditor, duty of the company secretary. Get it? Also, one has to becoming appointed by every company whose paid up capital is 5 crore or more. Also, one has an option of the practicing CA and work his own. अपना खुद का कोई प्रैक्टिस कर सकता है. बड़ौदा में बहुत कम है कि CS की प्रैक्टिस करने वाले. तो यू कैन ओपन योर ओन ऑफिस, ओन प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस कर सकते हो. गेट इट? कंसल्टेंट. दूसरा है, देयर आर टू अल्टरनेटिव फॉर द एंट्री इन द CS. वन इज आफ्टर पासिंग 12th स्टैंडर्ड. After passing 12th standard, you have to pass the foundation exam. आपको क्या करने का? फाउंडेशन एग्जाम पास करना पड़ेगा पहले. और फाउंडेशन एग्जाम पास करोगे उसका तो 90% के आसपास रिजल्ट आता है. इट इज MCQ बेस्ड होता है, ऑनलाइन होती है एग्जाम. सो रिजल्ट इज 90%. गेट इट? देन यू गेट द एडमिशन इन द CS एग्जीक्यूटिव. इन CS एग्जीक्यूटिव देयर आर 2 मॉड्यूल. ईच मॉड्यूल हैज ए 4 सब्जेक्ट. CS में क्या होता है? ऐसे ये नहीं बोलते इंटर फाइनल, ऐसा नहीं होता है. इन CS देयर आर 2 पार्ट, CS एग्जीक्यूटिव, CS प्रोफेशनल. आफ्टर 12th पास करते हो तो पहले फाउंडेशन आपको क्लियर करना है. द एग्जाम इन द 3 or 4 times in a year. Every quarterly there is an exam of the CS foundation. But this foundation is only for the student who are passing the 12th. तो इसमें क्या होता है? 12th में जब आप पास हो जाते हो तो ज्वाइन द CS फाउंडेशन. नवंबर में सपोज के क्लियर हो जाता है आपका, तो यू स्टार्ट योर CS ड्यूरिंग योर F5 BCom, CS एग्जीक्यूटिव, CS प्रोफेशनल ड्यूरिंग द SY and TY. So at the end of the TY you get the 2 certificate of the graduation and certificate of the CS. जनरली क्या होता है? ओनली BCom, लोग BCom का ही खाली करते हैं. यू कैन ऑल्सो चूज फॉर दिस. तो इसमें आपके पास आफ्टर TY BCom, आफ्टर कंप्लीटिंग TY, आपके पास TY का तो डिग्री होगा ही होगा. एडिशनली सर्टिफिकेट ऑफ द CS. इट इज वैल्यूएबल. देन आफ्टर यू ज्वाइन द LLB, इट इज मोर वैल्यूएबल, मोस्ट वैल्यूएबल. देन आफ्टर यू ज्वाइन द LLB, यानी BCom, CS, LLB हाईली डिमांडेड. गेट इट? क्योंकि आप LLB साथ में कर लेते हो ना, तो आप उसके एडवोकेट, कंपनी का एडवोकेट बन जाते हो. फिर यू बिकम द लॉयर ऑफ द कंपनी ऑल्सो. तो ऐसा होता है इसके अंदर. नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड एंट्री में बताता हूं. दिस इज आफ्टर BCom.
द न्यू रूल्स आया है अभी आफ्टर बीकॉम, डायरेक्ट एंट्री बोलते हैं उसको। बीकॉम के बाद आप डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हो। कैसे होगा? स्टूडेंट गेटिंग 50% एंड अबव आर एलिजिबल टू गेट डायरेक्ट एंट्री इन द CS। ये नया रूल्स आया है। सबसे पहले मैं ये एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले इन माई लेक्चर दिस रूल्स एप्लीकेबल फ्रॉम 21 जून। अभी 21 जून को तो शाम को तो डिक्लेयर हुआ है। सबसे पहले मैं आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं। पहले ऐसा था, बीकॉम वाले स्टूडेंट को भी फाउंडेशन एग्जाम देना था। नाउ दिस आर एबॉलिश्ड। नाउ यू गेट द डायरेक्ट एंट्री। आपको फाउंडेशन का एग्जाम नहीं देना है। अब नया रूल्स अभी रिसेंट हुआ है। Student getting 50% or above are eligible to get the direct entry in the CS. New rules applicable from 21st June 21. Student passing BCom are not required to appear for the CS foundation. उसको ऐसे बोलते हैं CS एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट। CS एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट वो उसको देना जरूरी नहीं है। You get direct entry in the CS executive. So you can complete your CS executive program, both module. उसका एग्जाम जुलाई 22 में हो जाएगा। देन आफ्टर CS प्रोफेशनल प्रोग्राम 3 मॉड्यूल, इट इज कंप्लीटेड इन जुलाई 23। गेट इट? 8 सब्जेक्ट होते हैं, फाइनल में 9 हो जाते हैं। गेट इट? इसमें 2 मॉड्यूल है, 4 सब्जेक्ट। इसमें 3 मॉड्यूल है, 3 सब्जेक्ट। गेट इट? सपोज का आगे पीछे कुछ कोई ऐसा प्लानिंग करता, प्रिपरेशन नहीं हुआ है, तो एवरी 6 मंथ देयर इज ए एग्जाम। आप कभी भी फिर दे सकते हो। सो इन 2 ईयर यू कंप्लीटेड CS कोर्स एट लोएस्ट कॉस्ट। इसका कॉस्ट ज़्यादा नहीं है। आप मास्टर डिग्री में जितना खर्चा करते हो इतना ही खर्चा होते हैं। इसके साथ आप मास्टर डिग्री भी ज्वाइन कर सकते हो। इट इज़ द कोर्स बाय द इंस्टीट्यूशन। सो कोई यूनिवर्सिटी में एडिशनल कोर्स भी आप कर सकते हो, उसका कॉस्ट कम है। एंड वर्क ओनली 6 आवर ए डे। आप 5-6 घंटा काम करते हो इसके पीछे, तो यू बिकम द सक्सेसफुल। Result of the CS around 35 to 40% approx. Generally CS final CS का रिजल्ट आता है 35 to 40% approx. इतना सारा रिजल्ट आता है उसका। So you become the success. It is a reputed. आपके पीछे CS लगा है, आगे CS लिखा है CS राकेश पटेल, तो इट इज वैल्यूएबल। गेट इट? तो मैं जनरली क्या बोलता हूँ, कोई ऐसे बोलता है मेरे को खाली एमकॉम करना है, तो मैं ऐसे बोलता हूँ एमकॉम ज्वाइन कर दे, साथ में CS भी कर ले। कि मेरी बेस्ट एडवाइस ये है, आप LLB ज्वाइन कर दो, साथ में CS करो। बड़ौदा का LLB का तो अभी शायद नहीं होगा एडमिशन आपका, तो आनंद लो कॉलेज ऑफ आनंद इज ऑल्सो रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी। गेट इट? तो वहाँ पे एडमिशन ले लो और साथ में CS भी करो। CS में खाली क्लासेस में जाना जरूरी है या तो रीडिंग ऑफ द बुक्स? इसके बारे में कौन से क्लास में जाने का, क्या करने का, विच क्लास इज बेटर इन द वडोदरा, कॉन्टेक्ट मी पर्सनली, आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल। So these are second professional course. First is a CA, second is a CS. Now third one. Third professional important course is a CMA. Previously it is known as a ICWA. CMA का मतलब होता है Cost and Management Accountant. Cost Management Accountant. CMA. Previously it is known as a ICWA. Institution of Cost and Work Accountant. ऐसा था ICWA. So previously it is known as a ICWA. It is also conducted by the institution which are registered under Special Parliament Act. ये भी ऐसा ही है, स्पेशल पार्लियामेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन हुआ है। CMA course are conducted by Institution of Cost and Work Accountant of India, registered under Parliament Act. CMA is also professional course with high value and reputation. ऐसे आगे लिखते हैं धवल शाह, CMA धवल शाह। अब CMA हो जाए तो आगे लिखते हैं CMA परेश शाह, CMA राहुल पंड्या। ऐसे लिखने से एकदम रेपुटेशन आपका बढ़ जाता है, आपका वैल्यू बढ़ जाता है। CMA बहुत कम लोग कर रहे हैं। So if you do this course, then also your value are increased. But listen to me, when you are searching on online, though there are 3 types of the CMA. आपको ऐसे लिखना है ICWA, that is CMA of India.
दूसरा CMA कनाडा का आता है, US का है, वो अलग है। CMA ऑस्ट्रेलिया में अलग है कोर्स। यानी खाली CMA देखोगे ने तो आपको तीनों ये बता देंगे। आपको इंडिया का है तो ICWA लिखने का, कंडक्टेड बाय ICWA, तो आपको ऑनलाइन सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। गेट इट। वो फॉरेन का कोर्स का CMA है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा, जो फॉरेन के सब कोर्स समझाऊंगा उस टाइम पे। अभी तो मैं ये समझा रहा हूँ CMA, प्रीवियस इट इज नोन एज ए ICWA। देयर आर 2 अल्टरनेटिव फॉर द एंट्री के लिए 2 अल्टरनेटिव है। देयर आर 2 एंट्री स्कोप आफ्टर पासिंग 12th स्टैंडर्ड। आप 12th स्टैंडर्ड पास करके ज्वाइन करना चाहते हैं तो पहले फाउंडेशन कोर्स करना है, वो कंप्लीट करने के बाद आप CMA ज्वाइन कर सकते हो। CMA इंटरमीडिएट, उसमें 2 ग्रुप होते हैं, और CMA फाइनल, उसमें 2 ग्रुप होते हैं। यू कंप्लीटेड योर एग्जाम इन द 2 years, आप 2 साल में खत्म कर सकते हो। ये क्या आफ्टर 12th है ना, तो पहले फाउंडेशन कोर्स आएगा, उसकी एग्जाम नवंबर में आएगी। देन आफ्टर यू ज्वाइन द CMA। नाउ आफ्टर BCom कैसे होगा, तो आफ्टर BCom इज ए डायरेक्ट एंट्री। आफ्टर BCom इज ए डायरेक्ट एंट्री। After BCom direct entry, student getting 50% or above eligible to get direct entry in the CMA. Student passing BCom are not required to appear for the foundation course. So you can plan your CMA as follow and completing in the 2 years. BCom के वाले जो स्टूडेंट है, the student who are completed BCom, उसको फाउंडेशन का एंट्री नहीं देना है, उसका एग्जाम नहीं देना है। They get the direct entry in the CMA, उसको डायरेक्ट एंट्री मिलेगा। तो डायरेक्ट एंट्री मिलेगा तो 2 या 2.5 साल में वो कोर्स खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट पासिंग द BCom आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द फाउंडेशन कोर्स। उसका फाउंडेशन कोर्स नहीं होता है। आपको एडवर्टाइजमेंट देख के कहीं घुस मत जाना कि फाउंडेशन का एग्जाम देना है। यू आर कंप्लीटेड BCom विथ मिनिमम 50%, यू आर एलिजिबल टू गेट द एडमिशन डायरेक्ट। So you can plan your CMA as follow and completed within 2 years. CMA Inter appear in November 22, both ग्रुप का एग्जाम देने का। CMA फाइनल appear in November 23, both group. So there are 2 to 3 years you can complete your CMA course. There is also internship for the 1 year. After completing CMA there is also internship of the 1 year. 1 year का इंटर्नशिप भी इसमें है। गेट इट। इसका भी डिमांड ज़्यादा है। CMA वर्क एज ए कॉस्ट ऑडिटर, वो कॉस्ट ऑडिट कर सकता है। इसका काम क्या है, कॉस्ट ऑडिट। फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट नॉट अलाउड, वो कॉस्ट ऑडिट कर सकता है। हमने TY में आपको पढ़ाया था व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट, तो उसमें ये आया था आपको। तो ये CMA इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल कोर्स। फॉर दिस any information, contact me personally. I will suggest the name of the tuition classes, how to get the admission in CMA, who can help you for registration, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। Get it? These are the 3rd valuable course. First is a CA, according to my view best course is CA, then after CS, then after CMA, and last one वो तो एक्चुअली A+ है, पर बड़ौदा में उसका कोई क्लासेस ही नहीं अवेलेबल है, पढ़ाने का इंस्टीट्यूशन का ऑफिस भी नहीं है यहाँ पे, किसी को ज़्यादा पता भी नहीं है ये कोर्स के बारे में। उसको बोलते हैं चार्टर फाइनेंशियल एनालिसिस्ट, CFA, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट। कोई भी एनालिसिस्ट हो उसकी बहुत डिमांड है। इट मे बी ऑपरेशनल रिसर्च, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिसिस, या तो फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस का थोड़ा कुछ आप पढ़े हो इन TY BCom, फाइनेंशियल एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस, वो तो एक छोटा 2% 5% पोर्शन था, तो ये बहुत डिटेल में है। इसका लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आपको ऑनलाइन देखना है। गेट इट। क्योंकि बड़ौदा में ये ज़्यादा कोई पसंद नहीं करते हैं। गुजरात में खाली अहमदाबाद में अच्छी तरह से पढ़ाते हैं और बाद में मुंबई में। सो उसका थोड़ा इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। इट इज़ ए हार्ड कोर्स, थोड़ा मेहनत ज़्यादा मांग लेता है और समवट कॉस्टली। देखो, CFA is highly valuable professional course is conducted by institution of
चार्टर फाइनेंशियल एनालिसिस्ट ऑफ इंडिया। दिस कोर्स इज अप्रूव्ड बाय द सेबी, सेबी ने भी इसको अप्रूव किया है। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड अदर एंटिटी रिलेटिंग टू द स्टॉक मार्केट। अब देखते हैं CNBC, उसमें जो आर्ग्यूमेंट करने बैठते हैं ना जो लोग, जो अपने चार्ट बताते हैं कि शेयर बाजार का ऐसा चार्ट रहेगा, पर्टिकुलर कंपनी का चार्ट ऐसा है, वो एनालिसिस बोलते हैं। वो फाइनेंशियल एनालिसिस्ट ही कर सकता है। ज़्यादातर वैसी जो वहाँ पे उसको मिलेगी सेबी के रूल्स के हिसाब से, NSE BSE में गेट इन, हाईली डिमांडेड है। अब ये म्यूचुअल फंड वाली कंपनी है, वो भी इसको अपॉइंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है, वो भी इनको अपॉइंट करते हैं। इसका सप्लाई बहुत ही कम है, रिजल्ट नियर अबाउट 1% के आसपास है, 1 to 2%। सो इसकी डिमांड ज़्यादा है, पर थोड़ा हार्ड है। द स्टूडेंट हु आर गेटिंग अबाउ 50% इन BCom कैन एलिजिबल फॉर एडमिशन इन द CFA कोर्स। देर आर 3 लेवल टू कंप्लीटिंग द कोर्स विथ 7 सब्जेक्ट। ये 3 लेवल है, सब्जेक्ट तो 7 रहेंगे, वही 7 सब्जेक्ट कंटिन्यू रहेंगे, पर लेवल 1 तो कुछ लेवल का पढ़ेंगे, फिर वही 7 सब्जेक्ट डेप्थ में, वही 7 सब्जेक्ट और डेप्थ में। 21 सब्जेक्ट नहीं है, 3 लेवल है। गेट इट? ये 3 लेवल में आप कंप्लीट कर सकते हो। आफ्टर 2 लेवल, 3rd लेवल में जब आते हो तो आपको प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन देना शुरू करते हैं। हाउ टू एनालिसिस द स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस कैसे करोगे, फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे करोगे, बिजनेस एनालिसिस कैसे करोगे, वो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देना शुरू कर देते हैं। सो इसका बड़ौदा में कोई ट्यूशन क्लास भी नहीं है, यहाँ बड़ौदा में इंस्टीट्यूशन भी नहीं। अहमदाबाद में खाली एक ही फेमस है, वो उसके लिए नौकार क्लासेस करके है, वो उसका पूरा डेप्थ में चलाता है और वो कंडक्ट भी करता है। वहाँ वो PG फैसिलिटी भी है, रहने के लिए स्टूडेंट का हॉस्टल भी बनाया उसने। गेट इट? फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन यू मे कॉन्टेक्ट इट्स गुजरात ऑफिस एट अहमदाबाद और ऑनलाइन वेबसाइट। अहमदाबाद का ऑफिस है, वहाँ भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, या तो वेबसाइट पे आप देख लो, क्योंकि इसका ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता। या पर्सनली मेरे को मिलने आओगे, मैं इसका डिटेल में पढ़ बताऊँगा। ऑनलाइन सर्च करोगे पूरा मिल जाएगा। गेट इट? पर ऐसे मैंने सुना है और मैंने देखा भी है, बम्बई में इसके 3-4 इंस्टीट्यूशन है, 3-4 ऑफिस है, वहाँ हाई लेवल पे उसका कोचिंग होता है। अहमदाबाद में भी होता है, पर सक्सेस रेशियो इज 1 to 2%। ऐसा है, हार्डवर्क तो चाहिए, बहुत ही हार्डवर्क करना पड़ता है। तो देर आर 4 प्रोफेशनल कोर्सेज, ये बहुत ही अच्छे कोर्स है। फॉर एनी इंफॉर्मेशन कॉल मी और कॉन्टैक्ट मी पर्सनली। मॉर्निंग 8 to 10 आओगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। यह सेशन में मैंने प्रोफेशनल कोर्स के बारे में बताया। इन दिस सेशन आई गिव इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑल टाइप्स ऑफ द प्रोफेशनल कोर्सेज विच आर अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट एक्ट। ये 4 कोर्स ने पार्लियामेंट में पास किए हैं। दिस 4 इंस्टीट्यूशन ब्रिटिश गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी था, आज़ादी के बाद यहाँ छोड़ के गए हैं। तो 1949 ऑनवर्ड इट इज़ कंडक्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट अंडर स्पेशल पार्लियामेंट एक्ट, ये रजिस्टर्ड है। तो ये कोर्स का वैल्यू इतना ही है। दिस आर द प्रोफेशनल कोर्सेज। नाउ इन नेक्स्ट सेशन I will explain you regarding the other courses. So see at home properly. YouTube पे ये आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो and share to others, inform to others. It is benefit to all the community of the student. So pass on information to other student also. See you. ऐसा नहीं है मेरे क्लास का स्टूडेंट है उसको मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। एनी स्टूडेंट ऑफ द कम्युनिटी, स्टूडेंट कम्युनिटी का कोई भी है, वो मेरे को कांटेक्ट कर सकता है, उसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। गेट इट? सी यू, एंजॉय योर सेल्फ, एंजॉय एजुकेशन।